So we will continue with the next part of this chapter 12 physics chapter है chapter number 9 from HSC textbook current electricity and we'll resume with this chapter part 4 of this chapter. एक बार मैं बात करना शुरू करूंगा. I don't want anybody talking anything at all. Please pay attention. In this lecture today we are going to talk about galvanometer, voltmeter and ammeter. So we'll directly go to this galvanometer thing which we actually studied in the previous. तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने लास्ट पार्ट में गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करी थी. इफ यू रिमेंबर, यस और नो? हैव आई सेंट यू दीज नोट्स? ये नोट्स आपको मिल चुके हैं? ओके फाइन. तो अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which is used to detect even the small amount of the current is existing and also the direction of the current flow. Okay, so neutral position पे 0 पर होगा ये pointer. Basically this consists of a horseshoe shaped magnet जिसके नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक coil which is wound on over the soft iron core. Is this coil carries current, so once this coil carries current, some torque will be acting on this coil. और उस coil के ऊपर एक pointer attach किया गया है, तो वो pointer rotate होगा because of this torque. If there is no current, then this pointer will come to the normal position, zero वाला position पे आएगा. वो काम करता है ये spiral spring. Spring का काम है to bring back to its original position. ठीक है? So this is how it works basically. अब इसमें टॉर्क कैसे तैयार होता है, how this torque acts, ये हम एक चैप्टर में देखेंगे. अगला जो चैप्टर होगा 10th चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो उसमें हम ये देखने वाले हैं चीजें डिटेल्स में. वेल, बिकॉज दिस इज अ कॉइल, दिस कॉइल विल कैरी सम, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा. दिस कॉइल विल हैव सर्टेन रेजिस्टेंस. The resistance of the coil is denoted by G. Okay, and this is moderate. इसका वैल्यू होता है somewhere around like 100 ohms वगैरह, ऐसा उसका वैल्यू होता है. And current carrying capacity of this is 1 milliampere. 1 milliampere इतना करंट वो कैरी कर सकता है जनरली. तो उससे ज्यादा करंट होगा तो क्या करेगा? If we make 1 ampere current to flow, 1 milliampere उसका कैपेसिटी है. So if 1 ampere current flows, then this coil will burn. This coil will burn, na? Excess heat will be generated and it will burn out, isn't it? So now we will see how this galvanometer is modified and we make use of this galvanometer as an ammeter. हम उसको as an ammeter कैसे यूज करेंगे वो हम अभी देखने वाले हैं. ठीक है? So let us talk about this first. How can I modify the galvanometer and use it as a ammeter? ठीक है? तो हाँ, पूछ सकते हैं. डायग्राम इंपॉर्टेंट है. So let's see now. अब यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये है वो गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का G लिखा है, मतलब दिस इज अ रेजिस्टेंस. ये उसका रेजिस्टेंस है G. G is the resistance. Is that clear? And it can carry current Ig in it. What is the current carrying capacity of that? Ig. Let me say this current carrying capacity is Ig. Okay. तो यहाँ पर G is the resistance of the galvanometer coil and Ig is the current that it is. अब ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है, this box is basically ammeter. और इस बॉक्स के अंदर क्या स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मैंने दिखाया है. तो इस बॉक्स, दिस बॉक्स इज एमीटर और ये है वो गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर में क्या मॉडिफिकेशन किया है? ये देखो ये वाला मॉडिफिकेशन किया है. दिस इज द मॉडिफिकेशन दैट इज डन ओवर देयर. नाउ ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि Ig इज द करंट विच द गैल्वेनोमीटर कैन कैरी.
कितना कैरी कर सकता है वो? अभी अभी हमने देखा 1 मिली एम्पियर, isn't it? This can carry what current? It can carry 1 मिली एम्पियर। और ऐसा समझते हैं कि भाई ये जो एमीटर है इट हैज टू मेजर दिस करंट, दिस इज द करंट टू बी मेजर्ड आई, वो कितना है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज द करंट विच इट इज कैरिंग। सो 1 एम्पियर मतलब कितना होता है जी? इट इज 1000 मिली एम्पियर। सो एमीटर को 1000 मिली एम्पियर करंट दिया है, 1000 टाइम्स दैट दिस गैल्वेनोमीटर कैन कैरी। उसमें से सिर्फ 1 मिली एम्पियर करंट इसके थ्रू पास होगा, तो बाकी का करंट कहां से पास होगा? यहां से पास होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? Isn't it? So this is the modification. This is IS. तो इसके अंदर अगर 1000 मिली एम्पियर करंट आ रहा है, इसमें से सिर्फ 1 मिली एम्पियर यहां जा रहा है, तो दिस विल कैरी 999 मिली एम्पियर। इतना करंट ये खुद कैरी करेगा, ये वाला ब्रांच। Now what is this branch? This branch is consisting of a resistance. This resistance is called as shunt resistance. क्या कहते हैं इसको? Shunt resistance. Shunt मतलब parallel. Shunt resistance. Is this okay? And it is a low value resistance. Low value. देखिए जैसे पानी का if the water is flowing, तो वाटर को जहां से ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां से कम पानी फ्लो होगा, और जहां कम रेजिस्टेंस होगा वहां से ज्यादा पानी फ्लो होगा। तो करंट का भी ऐसा ही है। दिस इज हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, क्योंकि ये 100 ओम का रेजिस्टेंस होता है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 100 ओम का होता है। सो दिस इज हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर कॉइल के अंदर ज्यादा है रेजिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, उस आने वाले करंट को डिवाइड कर देते हैं, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ द रेजिस्टेंस। So we place here a low value resistance. So since this resistance is low, maximum current will flow through this, and since this resistance is high, minimum current will flow through this. So this value is adjusted in such a way that most of the current will flow through this. Are you understanding that? और यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा? बस उतना ही करंट फ्लो होगा जितना वो कैरी कर सकता है, जितना उसका कैपेसिटी है। Do you understand what I am saying there? Is this okay? Do you get that? सिर्फ उतना ही करंट कैरी करेगा। So what is the modification that is done in the galvanometer? गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या मॉडिफिकेशन किया जाता है? We connect a low value resistance which is called as a shunt resistance in parallel with the galvanometer. In parallel with the galvanometer. बस that is it. बस इतना ही उसमें चेंज है। Is that understood? Is this clear to all? ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है देखते हैं। Let's see what is given over here. यहां पे तो इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है गैल्वेनोमीटर का 1 मिली एम्पियर, दिस इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। यहां पर मैं लिख देता हूं व्हाट इज IG। IG इज कॉल्ड एज करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट कैरिंग कैपेसिटी of galv, which is approximately of the order 1 milliampere. Is that clear? And what is I? I is the current to be measured. Current to be measured. ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये IG is the current 1 milliampere करंट वो ज्यादा से ज्यादा कैरी कर सकता है, बराबर है क्या? इससे ज्यादा करंट अगर वो कैरी करेगा तो ये जल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है। नाउ यह यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि बाबा ये 1000 मिली एम्पियर का करंट कैरी उसको मेजर करना है। सो दिस कैन वेरी, मतलब ये करंट 0 से लेकर 1000 मिली एम्पियर तक वेरी करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? उस हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी होगा। इन द सेम वे दिस डिस्ट्रीब्यूशन विल आल्सो वेरी। समझो कि फिलहाल इसके अंदर 500 मिली एम्पियर ही करंट है, तो यहां पर कितना करंट फ्लो होगा? 0.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? एंड अकॉर्डिंगली, समझ में आ रहा है क्या? अगर यहाँ का आधा हो गया तो ये भी आधा होगा और ये भी आधा हो जाएगा। डू यू गेट दैट? Isn't it? And in accordance with that, this pointer will be showing the deflection. जैसे इसका करंट 0 हो जाएगा तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो पॉइंटर विल शो 0 डिफ्लेक्शन। यस और नो? जैसे ही इसके अंदर का करंट ज्यादा होगा तो ये पॉइंटर जो है वो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट?
सो दिस पॉइंटर विल शो द डिफ्लेक्शन. अब उस पॉइंटर के ऊपर जो हम एक डायल लगाएंगे हम लोग, उस पॉइंटर के ऊपर जो हम डायल लगाएंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, पॉइंटर के ऊपर, तो वो डायल हम जो लगाएंगे वो जीरो से लेकर कितने का डायल लगाएंगे, दैट डायल विल शो 0 इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना दिखाएंगे, तो मैक्सिमम 1 एम्पियर दिखाएंगे, मतलब 1000 मिली एम्पियर. डू यू अंडरस्टैंड दैट? समझ में आ रहा है? Is that clear? So this is called as calibration. It is calibrated from 0 to 1 ampere. लेकिन actually galvanometer के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 मिली एम्पियर. वो proportionately change होगा ना? Are you understanding what I'm saying here? This is how. तो इसके ऊपर जो डायल लगाया जाएगा वो 0 to 1 एम्पियर का लगाया जाएगा. Is that clear? Is that understood? So let's say here now. So the full scale, let the full scale deflection current and the resistance of the coil G of moving coil galvanometer be IS and G. ये IS नहीं होना चाहिए, this has to be IG. Please make the change. This has to be IG. ये IG होना चाहिए. Is that clear? So ये जो IG है करंट कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, या तो फिर हम इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी कहते हैं. फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. इज दिस ओके? समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? Is that okay? Is that clear? And IS is the shunt current flowing through the shunt. IG is the current flowing through the galvanometer. And IS plus IG is equal to I. Is that clear? यार तुम हाँ भी नहीं बोल रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे हो. प्लीज रिस्पॉन्ड. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वेदर वो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. हाँ प्लीज रिस्पॉन्ड. To convert the moving coil galvanometer into ammeter, so what are the modifications necessary? The effective current capacity must be increased. तो पहले करंट कैपेसिटी, मेरे को आंसर दे दो तुम लोग. तुम्हारे पेन पेंसिल सब नीचे रख दो, ये मैं तुमको व्हाट्सएप मैं तुमको मेल करने वाला हूँ. प्लीज आंसर. टू इट्स इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू द डिजायर्ड हायर वैल्यू. अगर ये मॉडिफिकेशन नहीं किया, if this modification is not done, and this is simply the galvanometer G which is having some coil in it and it is carrying current IG, isn't it? And it will show the deflection. So before making this modification, what was the current carrying capacity? Absolutely correct, 1 milliampere. लेकिन ये कैपेसिटी चेंज होके कितना बढ़ेगा? 1000 milliampere, मतलब 1 ampere. Is this okay? क्योंकि this ammeter as a whole has got this capacity. Is that understood? So this is to be done, and for that this modification is done. Okay. So यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि you have to increase. What are the necessary the modification necessary are? The effective current capacity must be increased to the desired higher value. Its effective resistance must be decreased, क्योंकि उसका पहला resistance बहुत ज़्यादा था, इस वजह से it was delicate. लेकिन उसको कैसे डिक्रीज किया जाता है? By again putting this low value resistance in series. Is that okay? The finite resistance G of the galvanometer when connected in series decreases the current. अगर पूरा का पूरा करंट इधर से फ्लो होता तो उसकी वजह से क्या होगा? पहले तो वो करंट ही डिक्रीज कर रहा है, करंट खुद खाएगा ना. अगर इतना ज्यादा करंट, तो वो जो करंट वो चेंज होगा उसकी वजह से. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? वो खुद खा रहा है, इतना खाएगा तो कैसे काम करेगा वो. इज दैट क्लियर? सो उसको बाईपास किया जाता है यहां से. समझ में आ गई बात? एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस. इन आइडियल केस एमीटर का कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए? जीरो. आइडियली द एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस. ठीक है. इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पॉसिबल डैमेजेस. अगर इतना ज्यादा करंट इस कॉइल से फ्लो होगा तो क्या होगा? कॉइल विल डैमेज, इट विल बर्न आउट. तो उसको सेव करना पड़ेगा. इन प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स आर अचीव्ड बाय कनेक्टिंग. It is achieved by connecting in parallel a low value resistance which effectively reduces the resistance of the galvanometer. This low value resistance in parallel is called as shunt resistance S. और वो अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार होता है. अब ये शंट क्या करता है? ये जो तीनों प्रॉब्लम थे वो तीनों प्रॉब्लम ये शंट सॉल्व करता है. All these three problems they are solved by the shunt resistance here. It is used to divert the large part of the total current. हाँ वो डाइवर्ट करता है. टोटल करंट 1000 था, उसमें से वो 999 मिली एम्पियर करंट डाइवर्ट कर रहा है. समझ में आ रहा है? करंट बाय प्रोवाइडिंग द अल्टरनेट पाथ एंड दस प्रोटेक्ट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम डैमेज.
इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ द एमीटर। पहले वो कितना मेजर कर पा रहा था 1 मिली एम्पियर, लेकिन उसका रेंज भी बढ़ गया। मोस्ट ऑफ द करंट इज ऑल्सो बाईपास्ड, अल्टरनेट पाथ उसको प्रोवाइड कर दिया है। इट डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स टू विच इट इज कनेक्टेड। अब देखिए ये जो कनेक्ट किए करने की वजह से उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है। द शंट रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब यहां पर हम देखेंगे कि भाई शंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। The current through the shunt is I minus Ig and it is Is. This is Ig and this is Is. Any doubt so far? Let's do the calculations for the shunt resistance now. अभी हम shunt resistance के लिए calculations देखने वाले हैं। यहाँ तक किसी को कुछ doubts है? Is this very clear to all? So let us see the calculations now. उसके calculations अब देखते हैं हम लोग। Okay? चलिए, सो नाउ यहां पर आपको एक चीज पता होगी ना कि सीरीज सर्किट सेम करंट, डू यू नो दिस? सीरीज सर्किट में करंट सेम होगा, सीरीज सर्किट विल कैरी सेम करंट एंड पैरेलल विल सर्किट विल हैव सेम voltage. This is the first rule. And second rule क्या होता है? Parallel circuit has same voltage. Parallel circuit has same voltage. ये रूल आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। Any doubts about that? ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात करें, if I talk about this, अगर इसकी बात करें, if I talk about this, तो यहाँ पे if what I see here is यहाँ पर this is ये पैरेलल में है, तो वोल्टेज इन दोनों के बीच का वोल्टेज और इन दोनों के बीच का वोल्टेज वो सेम ही रहेगा ना, isn't it? So क्या वोल्टेज होगा यहाँ पर? इसका वोल्टेज क्या होगा? दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द करंट। सो वोल्टेज फॉर पैरेलल सर्किट, आई वुड से हियर फॉर पैरेलल सर्किट the voltage is same. तो what is the voltage across this galvanometer resistance G? V is equal to IR ना, V is equal to IR। तो यहाँ पर हम बोलेंगे therefore V is equal to क्या होगा यहाँ पर? IG into G, IG into G, और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा? IS, दिस इज IS, समझ में आ रहा है? सो दिस इज IS into S, समझ में आ गया? एंड दिस इज IG, याद रखिए, दिस इज IG एंड दिस इज IS, समझ में आ गया? इज दैट ओके? अब therefore अब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये डेरिवेशन है। यू आर फीलिंग स्लीपी? तो ये क्या बन जाएगा? IS अपॉन IG, IS अपॉन IG इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? G अपॉन S। एनी डाउट्स अबाउट दिस? एनी डाउट्स अबाउट दिस? ओके, अब मैं इसमें +1 ऐड करूंगा। तुम पूछोगे क्यों? तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि डेरिवेशन है और ऐसा करना मुझे अच्छा लगता है। लेट्स टेक द एलसीएम, व्हाट आई गेट देयर, दिस विल बिकम IS प्लस IG। आप लोग आंसर करने की तकलीफ उठाओगे प्लीज। डिवाइडेड बाय IG इज इक्वल टू यहाँ पर होगा S प्लस G अपॉन S। इज दिस ओके? ओके, बट आई नो दैट व्हाट इज IS प्लस IG? IS प्लस IG इज इक्वल टू I, बराबर है क्या? IS plus IG is equal to I. So let me just substitute here and let me take the reciprocal of this. तो इसका reciprocal है कि ये बनेगा IG upon I is equal to S upon S plus G, S upon S plus G। तो ये है पहला फॉर्मूला जो मुझे कई बार यूज करना पड़ेगा, जो मुझे कई बार यूज करना पड़ेगा। So let me just put it in the box। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे लिए। समझ में आ गई बात? Is this okay? Is that clear?
ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, यहां से जो मिलेगा, यहां पर मैंने IS ऊपर लिया और IG नीचे लिया, बट इफ आई राइट इट लाइक दिस, IG अपॉन IS is equal to, it will be S upon G na. And once again I'll just do the same steps here. Can you help me? Please tell me plus 1 plus 1. चलिए आगे बताइए. Take LCM. IG plus IS upon IS is equal to S plus G upon G. समझ में आ गई बात? Take reciprocal and again you substitute this thing here. क्या बन जाएगा? IS upon I is equal to G upon S plus G. रेसिप्रोकल लिया जी मैंने. इज दैट क्लियर? सो दिस इज वन मोर फॉर्मूला. ठीक है, अगर यहां पर G है तो इधर S है, अगर यहां पर S है तो यहां पर G है. आई थिंक यू कैन डू इट लाइक दैट. इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस ओके? अच्छा, देन देयर इज वन मोर सेट ऑफ कैलकुलेशन, देयर इज वन मोर थिंग दैट आई हैव टू डिराइव हियर, जो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा. क्या क्या एक्सप्लेन करना है मुझे? देखिए यहाँ पे गौर से, यहां पर check here. Again I'll go for this formula. यहाँ पर it will be G into IG, but what is 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 equal to, यहाँ पर मैं substitute करूंगा IS के लिए. What is 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 equal to? IS is equal to I minus IG. Can I say so? अगर मैं इसमें substitute करूंगा इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? IG, बोलिए प्लीज. G is equal to I minus IG into S. समझ में आ गया? Therefore what is S is equal to? Therefore what is S is equal to? IgG divided by I minus IG. Is that clear? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा. सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट आई हैव डिराइव्ड हियर. तो दिस इज द formula with the help of which we calculate the shunt resistance. This formula is used for calculating the shunt resistance. Shunt resistance calculate करने के लिए ये formula use करते हैं हम लोग. This formula is telling us the fraction of the current which passes through the shunt. This is telling us fraction of the fraction of total current passing through shunt. Fraction of total current passing through shunt. And what about this first wala formula? Passing through shunt. टोटल करंट I है, उसमें से इतना करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगा. फॉर्मूला टेलिंग मी फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू गैल्व. फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल. पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कॉइल. इज दैट क्लियर टू ऑल? सो दीज आर द थिंग्स इंपॉर्टेंट. चलिए इसके अंदर और एक चीज जो इंपॉर्टेंट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. देयर इज वन मोर थिंग. समझिए कि यही डायग्राम है. ठीक है, ऐसा मानते हैं कि I'll just copy this diagram here once again. Let's see. Let's say कि भाई ये जो उसका गैल्वेनोमीटर का करंट कैरिंग कैपेसिटी ये है, and I want to increase it n times. I want to increase, so I is equal to n times Ig. जैसे कि प्रीवियस केस में वो 1 मिली एम्पियर था, उसको हमने 1000 टाइम्स इंक्रीज किया. यस और नो? अगर उसको मुझे 500 टाइम्स इंक्रीज करना है, उसको मुझे 2000 टाइम्स इंक्रीज करना है, उसको मुझे n टाइम्स इंक्रीज करना है. सो व्हाट आई से हियर, टू increase current carrying capacity n times, current carrying capacity, to increase the current carrying capacity n times, what you will do, what modifications are necessary. क्या? तो हम वही उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं.
इफ आई वांट टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी n टाइम्स, तो मुझे बस उसके लिए I के जगह पर क्या करना पड़ेगा, n टाइम्स IG, n टाइम्स IG। सो व्हाट दिस फॉर्मूला विल बिकम, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है वो क्या बनेगा, ये जो फॉर्मूला है S इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। द फॉर्मूला फॉर द शंट इज S इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो अब मुझे ये I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी, S इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन एन आई जी माइनस आई जी। इसमें से IG कॉमन आएगा मन ही मन में और कैंसिल भी हो जाएगा, एंड देयरफॉर व्हाट इज S इज इक्वल टू, S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दिस ओके? समझ में आ गया? ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द शंट रेजिस्टेंस इफ आई वांट टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी n टाइम्स। ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक में भी दी है, और ये है उसके डेरिवेशंस। तो ये एक डेरिवेशन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, छोटे छोटे फॉर्मूले हमने यहाँ पर डिराइव किए हुए हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो दिस इज हाउ द गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। इज इट? हाँ, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। इवन इफ दे आस्क यू स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर, तो आपको ये सब यहाँ पे डायग्राम लगा दो, ऊपर का ये लिख दो जो पॉइंट वाइज दिया है वो। इज दैट ओके? द नेक्स्ट थिंग दैट वी गो फॉर इज galvanometer. How do we convert this galvanometer into voltmeter? If I want to convert this into voltmeter, अब जैसे कि हम जानते हैं कि वोल्टमीटर कहाँ कनेक्ट किया जाता है, अगर सर्किट है, सर्किट में वोल्टमीटर, हमने बात करी थी उसके बारे में। वी हैव टॉक्ड अबाउट द वोल्टमीटर। यहां पर करी थी पार्ट 3। इफ यू रिमेंबर दिस, देखिए यहाँ पे आई शोन इट इन द, यहाँ पे देखिए, ammeter is always used to measure the current and it is put in series. Voltmeter is always used for measuring the voltage, it is put in parallel. तो ammeter should have zero resistance ideally, and voltmeter जो कि यहाँ पर हम ऐसा लगा देते हैं, it is to be put in the parallel. तो voltmeter ideally it should have infinite resistance and practically it will be as high as possible, whereas ammeter ideally it will have zero resistance लेकिन practically it has got least resistance. Can you see that लिखा हुआ? ये हमने डिस्कस किया था थर्ड पार्ट में। Is that okay? So now we are taking this further. Now we are taking this further कि यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वोल्टमीटर अगर हमें यूज करना है उसको, वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, वोल्टमीटर it is an instrument which is used to measure the potential difference of the circuit. It is always connected in parallel. Voltmeter is always connected in parallel, isn't it? Isn't it? अब उसके लिए भी to convert the moving coil galvanometer into voltmeter, there are few things that one should have. Its voltage measuring capacity must be increased. The first thing कि भाई उसका voltage measuring capacity increase करना पड़ेगा, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए आइडियली, हाँ अभी अभी तो मैंने डिस्कस किया ना यार, इनफाइनाइट होना चाहिए। यार तुमको ये मैंने काहे के लिए दिखाया था, एक सेकेंड, व्हाई डिड आई शो यू दिस थिंग? यहाँ पे मैं लेके गया था, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, आइडियली एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस लेकिन प्रैक्टिकली as least as possible. Ideally voltmeter should have लेकिन practically as high as possible. ये मैंने अभी आपको बताया। अब मैं यही चीज लेके, ये दिमाग में रखो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? और अब मैं यहां जा रहा हूं, ठीक है? तो its effective resistance must be increased. Why? Because ideally it should have infinite resistance. समझ में आ गई बात? Did you understand that? ठीक है? So उसका effective resistance बढ़ाना पड़ेगा। फिर
इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पॉसिबल डैमेजेस। उसके अंदर ज्यादा करंट फ्लो होगा तो हीट जनरेशन जल जाएगा। समझ में आया? तो दीज थ्री थिंग्स आर अचीव्ड। हाउ आर दे अचीव्ड? ऑल दीज थिंग्स आर अचीव्ड। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, लेट मी एक्सप्लेन यू कि भाई अगर ये गैल्वेनोमीटर है, naturally this galvanometer has certain coil, इस coil का कुछ resistance होगा G, yes or no? And what is its current carrying capacity? Its current carrying capacity is Ig. इतना ही करंट वो कैरी कर सकता है। Is this clear to all? ठीक है। अब उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जाएगा? कुछ नहीं, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया जाएगा। लेट मी कॉल दिस रेजिस्टेंस एज X। प्रीवियस केस में क्या था वो रेजिस्टेंस? शंट रेजिस्टेंस था। यहां पर X इज दैट वैल्यू, दैट रेजिस्टेंस। इट इज X इज द हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज। हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज। एमीटर में क्या था? शंट। व्हाट वाज द शंट? एमीटर में ये जो हमने शंट यहां पे लगाया था, व्हाट वाज दिस शंट? यस, शंट इज द लो वैल्यू रेजिस्टेंस ना। ये जो शंट हमने यहां पे लगाया था, व्हाट वाज दिस? दिस वाज लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसका एग्जैक्टली अपोजिट करना है। लो वैल्यू, हाई वैल्यू, पैरेलल, सीरीज। इज दिस ओके? इट हैज टू बी लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल फॉर एमीटर, और वोल्टमीटर के लिए इसके एग्जैक्टली विपरीत। क्या? सीरीज। समझ में आ रहा है सबको? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ठीक है। सो दिस इज हाउ। और ये हो गया तैयार तुम्हारा। सो ये तुम्हारा वोल्टमीटर तैयार हो गया। दैट्स इट। दिस इज द वोल्टमीटर दैट यू वांटेड। अब इसके ऊपर वो पॉइंटर शॉइंटर है, उसको कैलिब्रेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज। समझ में आ गया? अब हमने इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाया नहीं है। वी हैव नॉट इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी। समझ में आ गया क्या? क्योंकि करंट उतना ही है उसके अंदर। इट शुड कैरी मिनिमम करंट। ठीक है। अच्छा, अब इसका वोल्टेज बढ़ा दिया क्या हमने? देखो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, बिकॉज वी हैव पुट दिस हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, और सीरीज में डायरेक्ट वो ऐड हो जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इजंट इट? नाउ दिस इज द सीरीज सर्किट। अगर ये सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट विल हैव सेम करंट। सीरीज सर्किट में क्या सेम होता है और क्या ऐड होता है? वोल्टेज। देखिए यहां पे जो मैंने दिया है आपको रूल लिख के, सीरीज सर्किट में सेम करंट एंड वोल्टेज एडेड, एंड वोल्टेज इज एडेड। उसका वोल्टेज ऐड हो जाता है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है? सेम वोल्टेज एंड करंट इज एडेड। करंट इज एडेड। आई होप यू नो दिस। बराबर है ना? सीरीज सर्किट सेम करंट वोल्टेज एडेड, पैरेलल सर्किट सेम वोल्टेज करंट एडेड। चलिए यहां पे बात करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सर्किट इज दिस? ये कौन सा सर्किट है? ये सीरीज है बाबा। दिस इज सीरीज ना। तो इसमें वोल्टेज ऐड होगा। उसका पहले वोल्टेज वो कितना, ठीक है, तो नया उसका वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी, उसका वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी अगर V है, तो व्हाट इज दिस वोल्टेज? V इज इक्वल टू, इट विल बी IgG प्लस IgX। यस और नो? इजंट इट? IgG प्लस IgX, और मुझे X कैलकुलेट करना है, तो आई ट्रांसफर इट ऑन द अदर साइड। क्या मिल जाएगा ये बताइए? देयरफॉर व्हाट इज दैट? V minus Ig into G is equal to Ig into X divided throughout by Ig. So what do you get there? Therefore X is equal to V upon Ig minus G. Well, this is the formula with the help of which we calculate this high value resistance in series. V upon Ig minus G. Is this okay? Is that clear? ठीक है। अब उसी प्रकार से पहले उसका वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी कितना था देखते हैं।
What was the voltage carrying capacity before this resistance was put? Vg is voltage capacity of गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज कैपेसिटी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर अगर इस x को हटा देते हैं तो जो बचता है उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर. इस x को हटाएंगे तो जो बचेगा उसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर. तो इसका वोल्टेज कितना होगा यहाँ पर? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द वोल्टेज ओवर हियर? इफ आई आस्क यू कि भाई इसका वोल्टेज यहाँ पर है Vg, isn't it? और फिर ये वोल्टेज इसमें ऐड हो रहा है, इसका वोल्टेज उसमें ऐड हो रहा है. समझ में आ रहा है? Isn't it? So when this was not there, what was the voltage capacity of the galvanometer? It was Vg, and this Vg is equal to क्या था? What was this Vg is equal to? Ig into G. Ig into G. लेकिन इसे लगाने के कारण इसका वोल्टेज नया, तो ये है उसका कैपिटल V इज द न्यू वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी, और न्यू, या तो हम बोल सकते हैं वोल्टेज कैपेसिटी ऑफ वोल्टमीटर, क्योंकि ये X रेजिस्टेंस लगाने के बाद वो वोल्टमीटर बन जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? Isn't it? Suppose this is n times the previous value. n times. पहले वो, अगर समझो कि पहले वो सिर्फ 5 वोल्ट मेजर कर रहा था, अब उसको 500 वोल्ट तक मेजर करना है, तो इट इज 100 टाइम्स ना, उस तरीके से. तो यहां पर V इज इक्वल टू n टाइम्स Vg, तो ये X क्या बन जाएगा? व्हाट शैल आई राइट हियर? बोलिए. यस प्लीज. व्हाट शैल आई राइट हियर? What shall I write here? How can I write this? Therefore ये x क्या बन जाएगा? X is equal to V is equal to n times Vg, and what is Ig is equal to, यहां से Ig मिल जाएगा मुझे, Vg upon G. Ig will be Vg upon G. If I'll substitute, what I'll get there? This is Vg upon G minus G ना. इसमें से कैन आई कैंसिल दिस Vg? क्या ये G ऊपर चला जाएगा? तो क्या बनेगा G? यार तेरे को बहुत नींद आ रही है. सो व्हाट इज X इज इक्वल टू एन जी माइनस जी, और दिस X इज इक्वल टू विल बी G इंटू एन माइनस वन. इज दैट ओके? इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है? सो दिस इज द वे वी कैलकुलेट the what is the higher value resistance that is to be put in the series if I want to increase the voltage measuring capacity n times, isn't it? To increase voltage measuring capacity n times, I'll just put here this thing, to increase to increase voltage measuring capacity n times. अगर मुझे voltage measuring capacity n times increase करना है तो I'll have to do all these things. Is this clear to all? Any doubts about this? समझ में आया सबको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज हाउ. अब यहां पे लास्ट में we'll see what is the difference in ammeter and voltmeter. I want to talk about that, the difference the comparison between ammeter and voltmeter. क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं देखिए कंपैरिजन के. It measures the current, it measures the potential difference, we call this as voltage. Ammeter is connected in series and potential the voltmeter is connected in parallel.
इट इज एन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका कॉइल मूव होता है ना, इसके लिए उसको एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। विथ लो रेजिस्टेंस, आइडियली उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, और यहाँ पे इट इज एन एमसीजी विथ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए। हमने सब पहले डिस्कस किया हुआ है, वी आर जस्ट कंपाइलिंग ऑल द पॉइंट्स हियर। स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द करंट मेजर्ड, या फिर यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लिखेंगे हाउ डू वी मॉडिफाई द गैल्वेनोमीटर टू द एमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। व्हाट इज द शंट रेजिस्टेंस? लो वैल्यू रेजिस्टेंस in parallel. And what is X here? High value resistance in series. High value resistance in series. Is this okay? Any doubts about that? समझ में आया? तो उसका यहाँ पर ये है, this is how we calculate this value. Resistance of the ammeter is given by. अच्छा, एमीटर में मुझे बताइए हम वो कनेक्ट कैसा करते हैं? एमीटर में लेट्स सी हियर कि भाई ये गैल्वेनोमीटर है, समझो दिस इज द गैल्व, दिस गैल्वेनोमीटर हैज द कॉइल, उस कॉइल का रेजिस्टेंस है G, यस और नो? एंड व्हाट वी डू हियर, वी कनेक्ट अ शंट रेजिस्टेंस हियर, तो भाई ये हो गया तुम्हारा शंट रेजिस्टेंस विच इज अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस, बराबर है क्या? और तब जाके तैयार हो जाता है हमारा एमीटर, तो दिस इज आवर एमीटर, यस और नो? इजंट इट? दिस इज, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो कुल मिलाकर व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर? 1 अपॉन RA इज इक्वल टू 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S, पैरेलल में है ना वो, करेक्ट? सो दिस इज इक्वल टू S प्लस G अपॉन SG. So what will be the resistance of the ammeter? It will be SG upon S plus G. Is this okay? SG upon S plus G. समझ में आ गया ये कैसे कहाँ से आया? समझ में आ गया? उसी प्रकार अगर यहां पर एक गैल्वेनोमीटर है which has got the coil and which has got the resistance, ये coil है G coil resistance and this is the external resistance which is connected, ये वाला high value resistance, और उस तरीके से हमारा क्या तैयार हो जाता है, ये voltmeter, this is the voltmeter. समझ में आ गई बात? So what is the effective resistance of the voltmeter? It will be simply G plus X. This is the effective resistance of the voltmeter, G plus X. This is how it comes. Any doubts about that? समझ में आ गया सबको ये? Alright, so these are some of the points, comparison points between the ammeter and the voltmeter. Is that okay? समझ में आया सबको? So let us switch over to the MCQs. Galvanometer, ammeter और voltmeter के MCQs. Now these MCQs, so let's continue with them. So यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 आंसर बी, वो MCG converted into ammeter and MCG converted into voltmeter. Any doubts about that? Is that clear? आगे बढ़ते हैं। अब वो जो फॉर्मूले है उसके ऊपर बेस्ड है, फॉर्मूला आप अपने बुक में जो है उसको सामने रखिए प्लीज। हाँ, मैं लिखता भी जाऊंगा लेकिन आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 70 ओम, ये क्या है? 70 ओम क्या है आप बताएंगे मुझे? हाँ, आईजी नहीं है, आईजी इज द करंट ना, दिस इज गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, सो आई विल कॉल दिस एज G. G is equal to 70 ohm. गैल्वेनोमीटर कॉइल विल हैव द रेजिस्टेंस ना, तो उसको हम G बोलते हैं, समझे? is converted to ammeter by a shunt resistance. Now this is S. The value of its resistance will become,
तो वही अभी हमने किया ना, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, द गैल्वेनोमीटर का मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन जी, क्योंकि वो पैरेलल में होता है ना, सो दैट विल बी एस प्लस जी अपॉन एस जी. So what will be RA is equal to SG upon S plus G. अब ये S है 0.03 into this is 70 upon 70.03. समझ में आ रहा है? So this will become सात्विक 21 210 22.1 बराबर है क्या? अपॉन 70.03. अब आई विल अप्रोक्सीमेट दिस टू 2 अपॉन 70 बराबर है क्या? 7 1 जा 7 0 नहीं, पॉइंट देने के बाद वो 20 बन जाएगा ना, तो 2 जा 14 60 बचा 8 जा बराबर है क्या? 60, हाँ ठीक है ना. तो दिस विल बिकम, मैंने जीरो रखा है ना यहाँ पे, so it will be 0.028. It is 0.028 ohm, which is the nearest value. D. D ना, D है ना. Is this clear to all? Any doubts about that? समझ में आया? आगे, if the galvanometer current is 10 milliampere, आपको आइडेंटिफाई करना है ये. What is this? This is the problem based on ammeter. Ammeter का फॉर्मूला क्या बनता है? और ammeter के लिए 3 फॉर्मूले देखे हमने. कौन से? ammeter के लिए 3 फॉर्मूले देखे. S is equal to IgG अपॉन I माइनस IG. दूसरा फॉर्मूला है IG अपॉन I S अपॉन S प्लस G. और तीसरा फॉर्मूला है IS अपॉन I is equal to G अपॉन S प्लस G. समझ में आ गई बात? So these are the 3 formulae that we have seen. अब यहां पर देखते हैं, if the galvanometer current is 10 milliampere, इसमें से क्या है वो? So this is IG, galvanometer का करंट. समझ में आ गया? The resistance of the galvanometer is 40 ohm. ये 40 ohm क्या है? G is equal to 40 ohm. ठीक है? The shunt of 2 ohm is S is equal to 2 ohm is connected to the galvanometer. The maximum current which can be measured by the galv is I पूछा है, I पूछा है. समझ में आ गई बात? Isn't it? तो इसमें मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बराबर है? तो आई राइट इट एज I माइनस IG इज इक्वल टू IgG अपॉन S, और I इज इक्वल टू, ये IG उधर चला जाएगा, सो इट बी IgG अपॉन S प्लस IG. इज दिस ओके? सो व्हाट विल बी I इज इक्वल टू IG 10 मिली एम्पियर. तो 10 मिली एम्पियर मतलब 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 इंटू G डिवाइडेड बाय S प्लस 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 3. वेल 10 रेस टू माइनस 3 को आप कॉमन ही लीजिएगा बाहर इकट्ठा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? दिस इज 2 20 जा 20 200 प्लस 10, so this will become 210 into 10 raised to minus 3. समझ में आया? That is equal to 0.21 ampere. So the answer is A. Is this clear to all? Any doubts about that? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, शंट रेजिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब इट्स एन एमीटर. इट्स एन एमीटर. तो एमीटर के लिए वही 3 फॉर्मूले दोबारा आएंगे. अगेन दो सेम 3 फॉर्मूले, उसमें से कोई भी एक हो सकता है. समझ में आया? लेट मी जस्ट पुट इट हियर. चलिए, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम, क्या है ये? G is equal to 40 ohm. सही है? Isn't it? Gives a deflection of 5 divisions per milliampere. कितना डिफ्लेक्शन दिया है उसने? ये थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट करके पूछा है. 5 milliampere, sorry 5 divisions per milliampere.
1 मिली एम्पियर के लिए 5 डिवीजन, 5 डिविजन्स फॉर 1 मिली एम्पियर, देयर आर 50 डिविजन्स, तो फॉर 50 डिविजन्स हाउ मेनी मिली एम्पियर, 50 डिविजन्स corresponds to 10 मिली एम्पियर। तो ये 10 मिली एम्पियर क्या है, हाँ IG है। शंट कहां से आ गया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो दिस इज IG, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समझ में आ गया, ट्विस्ट करके दिया था ये थोड़ा सा। द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू इट, मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू इट व्हेन द शंट ऑफ 2 ohm, C is equal to S is equal to 2, मैक्सिमम करंट आए ना, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सोच के दे दो आंसर। आए मतलब मेरे को एमसीक्यूज मत दे दो, ऑप्शंस मत दो। अच्छा आए नहीं है, IS ले, नहीं IG ले, ऐसे मत करो। ओके, विच फॉर्मूला, यही फॉर्मूला अगेन, तो वही तरीके से कैलकुलेट करना है। सो इट बी I माइनस IG इज इक्वल टू IgG अपॉन S, इजंट इट? वेल इसी के अंदर ये माइनस है, उधर जाके प्लस कर देता हूं मैं, प्लस। समझ में आ गया? तो IG कितना है, 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, G 40 अपॉन S 2 प्लस IG 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, वही क्वेश्चन है ना। तो 210 मिली एम्पियर आएगा। दे हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन विद लिटिल डिफरेंट ट्विस्ट करके पूछा है। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट, इन द गिवन सर्किट a galvanometer with a resistance of 70 ohm, ये है वो galvanometer का coil का resistance, this is G, 70 ohm is converted to ammeter by a shunt resistance, so this is the shunt resistance S. Okay, total current measured by this device is हाँ, कैसे करेंगे? देखो अभी मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, समझे? ये जो है what will be the resistance of the ammeter is equal to 1 upon S plus 1 upon G. So resistance of the ammeter is given by SG upon S plus G. करेक्ट है? S 0.05 into G 70 upon 70.05. Now that is equal to कितना आएगा ये? 3.5 अपॉन 70 ले लूंगा मैं, बराबर है क्या? अप्रोक्सीमेटली 70 ले लेता हूँ, चलेगा ना? तो 35 अपॉन 70 इज व्हाट? दिस इज एक्चुअली 1 अपॉन 20, सो दिस इज 0.05। समझ में आ गया? इजंट इट? ये 0.05 है और ये 5 है एंड दे आर इन सीरीज, दे आर इन सीरीज। समझ में आ रहा है? तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस? इट विल बी नथिंग बट 5 plus 0.05, that is equal to 5.05 ohm. Yes or no? And V is equal to IR, so I is equal to E, which is 5 volt upon R, which is 5.05. Is this okay? So it is approximately equal to 1 ampere, approximately, isn't it? So which is the nearest answer here? D is the answer here. यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ सीरीज पैरेलल ओम्स लॉ खेला। समझ में आ गया? एनी डाउट्स अबाउट दैट? आर दीज क्वेश्चंस देयर इन योर बुक्स? है ना? आगे बढ़ते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ। अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, क्या दिया है ये? गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, आपको मुझे सिंबल बताना है इसका, जी।
करेक्ट है, G इज इक्वल टू 50 ओम। Gives a full scale deflection for the current of 0.05 ampere, full scale deflection for the current of 0.05 ampere, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना ही करंट वो कैरी कर सकता है। IG गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है यहाँ पे, दिस इज IG ना, इज इक्वल टू 0.05 एम्पियर। इतना छोटा करंट IG हो सकता है। द लेंथ in meters of resistance wire, the length in meters is of resistance wire of cross sectional area। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस उन्होंने लगा दिया है टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, एमीटर में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द, ये जो रेजिस्टेंस वायर है उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताया गया है। ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 into 10 raised to minus 2 centimeter square, okay, that can be used to convert the galvanometer into ammeter, which can read a maximum of 5 ampere current। ये क्या है, मैक्सिमम करंट बोले तो I is 5 ampere। तो मेरे ख्याल से यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे एमीटर वाला, S is equal to IgG अपॉन I माइनस IG। तो डू आई नो I, IG, G सब पता है ना। तो लेट मी कैलकुलेट दिस शंट रेजिस्टेंस, क्या आएगा ये, और इन्होंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी दिया हुआ है, रो इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 ओम मीटर। तो यहाँ पर मुझे उसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा कितना, IG इज 0.05 इंटू G इज 50 डिवाइडेड बाय I माइनस IG, 5 माइनस 5 अपॉन 100, सही है ना, इजंट इट। तो कितना आएगा ये, 2.5 अपॉन 500 माइनस 5 इज 495 इंटू 100, ऊपर गया ये, ठीक है ना। सो व्हाट S इज इक्वल टू 250 अपॉन अप्रोक्सीमेटली 500, 495 को मैंने 500 कर दिया, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाफ, इजंट इट। ये रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है कि इफ आई नो द रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द लेंथ ना, व्हाट इज द लेंथ, द लेंथ इन मीटर्स ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, तो दे आर आस्किंग व्हाट इज द लेंथ। तो इनको कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 11th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड में R is the resistance, this is the specific resistance, this is the length of the wire and this is the cross sectional area of the wire। तो ये 11th स्टैंडर्ड का एक 11th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपने किया था, तो आप बोलोगे नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं किया तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल। तो यहाँ पर वो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस है ना उस वायर का, isn't it? So I know this resistance, I know the specific resistance and I know the area of cross section, so I have to calculate what is L। समझ में आ गया। तो लेट अस कैलकुलेट नाउ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो व्हाट शैल आई से हियर, देयरफॉर L इज इक्वल टू SA अपॉन रो। नाउ व्हाट इज S, हाफ। नाउ दिस एरिया दैट दे हैव गिवन, ये सेंटीमीटर में है, उसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इट विल बी 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 माइनस 6, सॉरी 6 नहीं 4, तो टू कुल मिलाकर माइनस 6 डिवाइडेड बाय रो इज 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7। तो ये माइनस 7 ऊपर जाके प्लस 7 बनेगा, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 30 अपॉन 2 इंटू 5, बराबर है क्या। सो दिस इज इक्वल टू 5 टू द 10, सो दिस विल बिकम 3 मीटर and that's the answer C। is this a star problem, is that clear, any doubts about it। यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज किए हमने, एक 12th का एक 11th का, समझ में आ गई बात, is that clear। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm क्या होगा,
So let me say this is equal to G. Gives a full scale deflection. Gives a full scale deflection when 1 milliampere current passes through it. IG. Okay, IG का वैल्यू छोटा होता है हमेशा याद रखें. The resistance required to convert it into the voltmeter, reading up to 2.5 volt. वोल्टमीटर के लिए फॉर्मूला क्या देखा था हमने? X is equal to करेक्ट V अपॉन IG माइनस G. ये वाला फॉर्मूला यूज करना है मुझे. समझ में आ गया? तो दिस इज V. ये वोल्टेज जो आपने को मेजर करने का है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट V इज इक्वल टू X इज इक्वल टू V is 2.5 upon Ig is 1 milliampere. 1 into 10 raised to minus 3 minus G is 10. तो ये हो जाएगा माइनस 3 ऊपर जाके प्लस 3 हो जाएगा 2500 माइनस 10. तो इट बी 2500 माइनस 10 ना. तो ये कितना बनेगा? 2500 माइनस 10 490 2490 ohm. That's the answer. Is this okay? Any doubts about that? C is the answer here. समझ में आ गया? Proceed now. आगे बढ़ते हैं. A voltmeter which can measure 2 volt is constructed by using the galvanometer. ये galvanometer है, ये voltmeter बना दिया उसने. बराबर है क्या? A voltmeter which can measure 2 volt. A voltmeter which can measure 2 volt. A voltmeter which can measure 2 volt. देखिए फॉर्मूला है X is equal to V upon Ig minus G. इसमें this is the voltage capacity ना, तो वही है ना V. तो V is equal to 2 volt ना. यही मैं पूछ रहा हूं, आपको यही बताना है. पिक्चर देखने को आए हो क्या? Is constructed by using the galvanometer of resistance 12 ohm. Yes, G is equal to 12 ohm. And that produces maximum deflection for the current of 2 milliampere. Maximum deflection for the current of 2 milliampere. Correct, Ig. ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है. 2 milliampere. Is that clear? Then the resistance R is. तो उन्होंने उसको R बोल दिया, यहाँ पर हम जिसको X बोलते हैं. So what is this? R is equal to V. What is V? 2 upon Ig. 2 into 10 raised to minus 3. Minus G is 12. 2 cancel. 1000 minus 12. 988. Any doubts about that? Is this clear to all? So B is the answer. समझ में आ रहा है सबको? Next question. The value of current in the given circuit if the ammeter is a galvanometer with resistance Rg is 50 ohm. इसका रेजिस्टेंस कितना बताया? G बोलिए या Rg बोलिए, कितना है ये? 50 ओम का है. इसका रेजिस्टेंस 50 ओम है. तो बस मुझे I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. दिस इज ऑल्सो ओम्स लॉ ओनली ना. व्हाट इज E? EMF ऑफ द बैटरी इज 5 वोल्ट. करेक्ट. एंड R and this is R. कितना होगा ये? This is 50 plus 3, 53. 53. I'll approximate this to 5 upon 50. That is 0.1. 0.1 ampere, which is the nearest value. D is the nearest value. समझ में आ गया? Any doubts about that? समझ में आ रहा है? Next. A galvanometer coil has a resistance of 15 ohm. Galvanometer coil का resistance 15 ohm. And the meter shows full scale deflection for a current of 4 milliampere. To convert the meter into voltmeter of range 0 to 18 volt, मतलब V is equal to 18 volt. The required resistance is, so X is equal to V upon Ig minus G. Substitute. V 18, Ig 4 into 10 raised to minus 3, minus G 15.
तो ये ऊपर चला जाएगा, दिस विल बिकम 18,000 अपॉन 4 माइनस 15, दिस इज 4 वन जा 4 4 जा 16, 2 बचा 4,500, सही है। उसमें से 4485 ohm, so what is the answer here? In series, पैरेलल में होता है एमीटर में, और वोल्टमीटर में सीरीज में होता है, तो दिस इज अ वोल्टमीटर। समझ में आ गया? सो बी इज द आंसर देयर। समझ में आ गया? काफी आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे प्लॉट करके रखा था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, a galvanometer of resistance 50 ohm, a galvanometer of resistance 50 ohm, क्या है ये? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कॉइल रेजिस्टेंस है जी, is connected to the battery 3 volt, E या V, whatever, V नहीं E, along the resistance of 2950 ohm। चलो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, I'll plot the diagram here। galvanometer along with a resistance of 2950 in series, ओके तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 2950 ohm in series, a full scale deflection, this is 3 volt battery, a full scale deflection of 30 divisions is obtained on the galvanometer। गैल्वेनोमीटर के ऊपर फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ गया है, कितने का है ये? 30 डिविजन्स। In order to reduce these deflections to 20 divisions, the resistance in series should be। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? बताइए कैसे करेंगे। देखो अब यहां पे व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन दिस? I is equal to E, that is 3 upon 2950 plus G is equal to 50 ohm है ना, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 3000, बराबर है क्या? So this is 1 into 10 raised to minus 3 ampere, that means it is 1 milli ampere। समझ में आ गया? ये करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज द करंट फ्लोइंग। अब ये क्या बोलते हैं कि बाबा यहाँ पे 30 डिविजन्स नहीं चाहिए मुझे, तो अब यहाँ पे देखो ऐसा है कि I whatever current is there, it is directly proportional to theta ना, this is theta is 30 divisions I would say। ये जो एंगल दिखाता है उसको नंबर ऑफ डिविजन्स, उसको मैं थीटा बोल देता हूँ। सो I is equal to k times theta, कैन आई से सो? क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, इजंट इट? अब देखिए यहाँ पे नया जो पोजीशन है, नया जो पोजीशन है, इन द नेक्स्ट केस, इन सेकेंड केस दे वांट दिस डिविजन्स थीटा डैश इज इक्वल टू 20 डिविजन्स, तो उसके लिए मुझे करंट उसमें से कम करना पड़ेगा आई डैश, बराबर है क्या? आई डैश, और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस आर था वो नया रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा? आर डैश। सो दे आर आस्किंग व्हाट इज आर डैश। Now can I say I dash is also equal to k into theta dash, and can I take the ratio of these two divided by I and divided by k theta? Therefore what we get there? This I dash, I don't know, I is 1 milliampere is equal to theta dash is 30 divisions and theta is, sorry, theta dash is 20 divisions and theta is 30 divisions। Are you understanding that? That means what is the current that has to flow? 2 by 3 milliampere। समझ में आ गया? ये मिली एम्पियर में दिया तो आंसर भी मुझे मिली एम्पियर में आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो अब मेरा जो ये सर्किट होगा वो इसी प्रकार का होगा कि भाई ये है वो गैल्वेनोमीटर, G इज इक्वल टू 50, ये है वो गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला है, R डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जहां पर वही सेम बैटरी यूज किया गया है 3 वोल्ट का। अब इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? इट विल बी नथिंग बट E इज इक्वल टू या वट एवर आई अपॉन आर प्लस आर, आई अपॉन आर प्लस आर। तो E इज
3 वोल्ट, बराबर है क्या? I is what? I dash, actually ये I dash होगा. What is I dash? 2/3 into 10 raised to -3 divided by this resistance. टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर? R dash plus 50. बस इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे. Did you understand that? Isn't it? तो ये बन जाएगा, ये इधर चला जाएगा. This will become R dash plus 50 is equal to 2/3 into 10 raised to -3 upon 3. तो 3/1 है, ये ऊपर चला जाएगा. सो व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? 2/9 into 10 raised to -3. सही है, बराबर है क्या? 10 raised to -3 रेजिस्टेंस. एक सेकेंड ना, I इज इक्वल टू, एक मिनट, ये फॉर्मूला मैंने गलत लिखा है. दिस फॉर्मूला इज I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R. I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R. लेट मी जस्ट करेक्ट दिस. क्या मिल जाएगा ये? सॉरी, what do you get there? I dash is equal to, so I dash is 2/3 into 10 raised to -3. या फिर मुझे ये R इधर चला जाएगा. सो दिस विल बिकम R dash plus G is equal to E upon I dash. समझ में आ गया? Then let me just equate this, put it there. क्या मिल जाएगा ये? Therefore R dash plus G is 50 is equal to E is 3 volt and I dash is 2/3 into 10 raised to -3. Now that comes out to be 9/2 into 10 raised to -3. ऊपर बन जाएगा 10 raised to +3. So this will become 4.5, that is 4500 minus 50, that is equal to R dash. So what is the value of R dash here? It will be 4400, sorry 4900 and, sorry 4450 ohm. That is the answer. 4450 B is the answer. हाँ बोलो. आएगा? कैसे आएगा? वो 50 ऐड हो रहा है ना. श्योर? कैसे आएगा देखो ना. 30 divisions. What the resistance? The resistance was 2950 plus 50. बराबर है क्या? V is equal to IR. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. चेक करो, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि तुम लिख रहे हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इट इज एक्चुअली इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन करके आएगा आंसर. या चलो आगे बढ़ते हैं. रेशियो लेके, इफ यू टेक द रेशियो ना, मतलब E इज इक्वल टू IR और I डैश R डैश. ऐसा कर सकते हैं. I इज कितना? 30 डिवीजन and resistance was 2950 plus 50. I dash is 20 divisions and R dash is R dash plus 50, whatever. तो ये कैंसिल हो जाएगा और वैसे भी तुमको आ सकता है. तो यू गेट दिस. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100. द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 300 ओम. अच्छा ये पहला वाला स्टार था क्या? ये नहीं ना. अच्छा ठीक है, स्टार कर लो फिर. हाफ स्टार, फुल स्टार. वाह. चलिए आगे बढ़ते हैं. रेंज ऑफ अ वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 300 ओम. वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, आर नहीं है एक्चुअली, इसको जी ही बोल देंगे हम लोग, क्योंकि दिस इज यूज्ड एज अ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा ना ये. एंड इज 5 वोल्ट.
द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर. देखो ये वोल्ट मीटर बोल रहे हैं, बट आई विल ट्रीट दिस एज गैल्व ओनली. आई विल ट्रीट दिस एज गैल्व. नाउ यहाँ पे दे से कि भाई इसका जो रेंज है, वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, एंड उसका जो रेजिस्टेंस है G इज इक्वल टू 300 ओम, एंड इसका रेंज मतलब VG. गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज कैपेसिटी इज 5 वोल्ट. समझ में आ गया? तो यहां से मुझे IG मिलेगा. Therefore what will be IG is equal to V is equal to IR. It is VG upon G. समझ में आ गया? What is VG? 5 upon 300. मतलब कितना आएगा? 1 upon 60. Yeah, ampere. Is that clear to you all? ठीक है. The resistance to be connected to convert it into the ammeter of range. अभी एमीटर के लिए क्या फॉर्मूला है? S is equal to IgG upon I minus Ig. तो उसको 5 एम्पियर मेजर करना है. सो I is equal to 5 एम्पियर. सो Ig is 1 upon 60 into G is 300 divided by I, it's 5 minus Ig 1 upon 60. So this will become 300 upon 300 minus 1, 299. So approximately this is equal to 1 ohm. Approximately the answer is 1 ohm in parallel. In parallel क्योंकि वो ammeter है, तो 1 ohm in parallel. So B is the answer. Is this clear to you all? Any doubts about that? समझ में आया सबको? This is okay? Alright. Well, that finishes the MCQs over there. I'll stop here for physics now.